اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور رمضان مہینہ الحمدللہ ہمارے سامنے ہے. دعا کرے اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے, سنو گے بھائی, سنو گے انشاءاللہ. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, ساتھ میں بولو کون, پہاڑ پر گئے. بولو کہاں پر گئے, کس سے بات کر رہے؟ ایک مرتبہ سننا, ایک مرتبہ. یہ مہینہ بہت پیارا ہے. یہ حدیث سنو اور اسے جہاں تک ہو سکے پھیلاؤ. اتنی پیاری حدیث. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ پر گئے اور کس سے بات کر رہے؟ ارے ساتھ میں بولو نا, کس سے بات کر رہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. اللہ فرماتے ہیں میں حضرت موسیٰ سے بات کروں, حضرت موسیٰ مجھ سے بات کرے. یہ سننے جیسی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے. بات کرتے کرتے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا اس سے اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے, باتیں کر رہے. کہا اللہ میرے درمیان اور تیرے درمیان کتنا فاصلہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا بینی و بینک 70,000 حجاب من نور. اللہ نے کہا میری قسم میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے اور ایک نور کا پردہ ایک دنیا کے برابر ہے. کتنا فاصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں اتنا فاصلہ. اللہ نے کہا میرے درمیان اور تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے. اور اے موسیٰ اگر میں نے ایک نور کا پردہ ہٹایا میری تجلی کو دیکھ کر تو ختم ہو جائے گا. اتنا لمبا فاصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان تو اتنا لمبا فاصلہ, لیکن کوئی ایسا آئے گا کہ تیرے درمیان اور ان کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا ہاں کچھ لوگ آئیں گے کہ میرے درمیان میں اور ان کے درمیان میں اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ محمد, وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے درمیان اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وہ تو ہے ہی, وہ تو ہے ہی. وہاں تو ایسا فاصلہ نہیں ہوگا کہ میں ادھر ہوں گا تو وہ ادھر ہوں گے, ایک طرف خالق ہوگا تو ایک طرف محمد ہوں گے. وہ لیکن اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں موسیٰ تیرے درمیان اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میرے درمیان ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. کہا اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سننا بھائی سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کے امتی. کہو سبحان اللہ. سننا کیا فرما رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے آخری نبی کے امتی ان پر میں روزہ فرض کروں گا, وہ روزہ رکھیں گے. ارے بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے, شام کا وقت ہوگا, افطاری کا وقت ہوگا, غروب ہونے والا ہوگا, سورج ڈوبنے والا ہوگا, مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا. اس وقت میرے آخری نبی کا امتی دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے گا اے موسیٰ, اس وقت میرے اور اس کے درمیان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا. اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے, لیکن روزے دار روزے کی حالت میں مجھے پکارے گا تو ہمارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. میرے پیارو وہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے, لیکن وہی سوال جو میں نے درود پاک پہ سوال کیا تھا نا, جلدی جلدی ایک سوال کرو. روزہ رکھیں گے کون کون رکھے گا؟ ہاتھ اوپر ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. رکھیں گے نا بھائی؟ ساتھ میں بولو بھائی بھوکے بھی رہیں گے نا, پیاسے بھی رہیں گے نا, اور اللہ کے واسطے رہیں گے نا. میرے دوستو اللہ کو بہت پیار آتا ہے روزے پر, اللہ کو روزے پر بہت پیار آتا. اسی لیے ایک حدیث سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ نماز پڑھے گا میں جنت عطا کروں گا, میرا بندہ زکات دے گا میں جنت عطا کروں گا, میرا بندہ عمرہ کرے گا میں جنت عطا کروں گا, میرا بندہ حج کرے گا میں جنت عطا کروں گا. لیکن میرا بندہ روزہ رکھے گا جنت نہیں دوں گا, جنت نہیں دوں گا. جب ہمارے نبی نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا اللہ روزے پر جنت نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی کہہ دو سب عبادت پر جنت دوں گا, روزے پر جنت نہیں دوں گا. میں خود ان کا بن جاؤں گا, میں ان کا بن جاؤں گا, یہ میرے بن جائیں گے. ارے جب جنت کا پروردگار مل گیا تو ساری جنتیں مل گئی. بھائی جنت ملے تو ایک ملے کہ دو ملے, لیکن جب جنت کا پیدا کرنے والا مل جائے تو ساری جنت مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے پر بہت دیتے. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ روزے پر اتنا کیوں دیتا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو بہت رحم آتا. روزے دار پر اللہ ایسا رحم کرتا جیسا کوئی باپ اپنے چھوٹے بچے پر رحم کرتا. اللہ تعالیٰ روزے دار پر ایسا رحم کرتا کہ پانی اس کے سامنے ہے اور اس کو پیاس بھی لگی ہے, کھانا اس کے سامنے ہے, اسے بھوک بھی لگی ہے, لیکن اللہ کے واسطے کھاتا نہیں, اللہ کے واسطے پیتا نہیں. وہ ڈرتا ہے پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ارے کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کہتے ہیں وہ مجھ سے ڈرتا ہے, میں نے جنت کو واجب کر دیا ہے. میرے دوستو لیکن سوال ہے روزہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی میری تو آواز بیٹھ گئی, آپ تو جواب دو. معلوم ہے قبول ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ ارے ہوتا ہے. روزہ قبول ہوتا ہے تو جنت نہیں کون ملتا؟ میں پورا مجمع بولے کون ملتا؟ اور ایک حدیث پاک میں سنو, ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا رب صائم, ہمارے نبی فرماتے بہت سے روزہ رکھنے والے, نتیجہ بھوکا ہے پیاسا ہے, باقی ہمارے یہاں اس کا کوئی سبب نہیں ہے. تو ایک طرف یہ کہ کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے, سحری بھی کرتے, افطاری کرتے, لیکن کچھ نہیں, اور کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھے تو اللہ ملے. میرے دوستو یہاں پر بھی ایک چیز ایڈیشن کرنا ہے, اللہ روزہ قبول کر لے گا. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ. میں آپ نے سنا درود پاک اس کا قبول ہوگا جس کے دل میں آقا تاجدار مدینہ کی محبت ہوگی. روزہ کس کا قبول ہوگا؟ اور قبول ہوگا تو جنت نہیں اللہ ملے گا. بولو کون ملے گا؟ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں, ان سب کی نگاہ سے روزہ دیکھو اللہ ایمان دے دیتا ہے, لیکن میرے دوستو ہمارا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے لیے میرے دوستو اللہ نے, یہ تو اللہ نے ڈائریکٹ ایک نشانی بتائی اور اللہ نے کہا دیکھیے ہے تیرے اندر ہے, اگر بندہ کہے گا ہے اللہ کہیں گے روزہ قبول نہیں ہے.
तो 29 रोजे रखा कि 30 रोजे रखा, अल्लाह कहते इससे कोई लेना देना नहीं। कौन सी निशानी भाई आपको भी याद होगी, कुरान की आयत याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह फरमाते ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज, अगली उम्मतों पर भी रोजे। बस अब आगे अगर आपको याद ना हो तो कुरान में देख लेना, अल्लाह वो निशानी बताते कि रोजा कबूल करूंगा या नहीं करूंगा। क्या फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे तूने रोजा रखा, तरावी पढ़ी, अरे 29 दिन का रोजा रखा या 30 दिन का रोजा रखा, अल्लाह फरमाते लअल्लकुम तत्तकून। क्या मतलब, अगर तकवा है तो रोजा कबूल है। भाई कुरान ने कह दिया ना, बोलो ना, हाँ बोलो ना, इसके आगे पीछे तो कुछ नहीं ना। अल्लाह ने साफ कह दिया लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह कहते हैं सब रोजा रखेंगे, हर मुसलमान रोजा रखेगा, लअल्लकुम तत्तकून। तकवा होगा रोजा कबूल, तकवा नहीं रोजा कबूल। और तकवा किसको कहते हैं? अरे कुरान ने लअल्लकुम तत्तकून कह दिया, तकवा कहते किसको है? इसलिए कुरान में बहुत जगह पर है तकवा 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 कहते किसको है? मेरे दोस्तों इसकी तारीफ हजरत उमर करते। कौन तारीफ करते? हजरत उमर ने फरमाया तकवा किसको कहते हैं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया लोगों सुनो, तकवा उसको कहते हैं किसी मुसलमान के सामने गुनाह है, अरे मेरे सामने आपके सामने गुनाह है और गुनाह करने की ताकत है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, आपको कोई रोकने वाला नहीं, गुनाह है करने की ताकत है, लेकिन बंदा ये सोचे अल्लाह मैं गुनाह कर सकता लेकिन तेरा बहुत डर लगता, इसलिए मैं गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह कहते जा मेरे बंदे तेरे अंदर तकवा आ गया। भाई समझ गए, तकवा समझ में आ गया? तो बोलो आ गया, तकवा समझ में आ गया। गुनाह करने की ताकत, बोलो गुनाह करने की ताकत हो, कोई रोकने वाला, अरे बोलो कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं गुनाह नहीं करता कि मेरा परवरदिगार तू तो मुझे देखता है, मुझे शर्म आती है अल्लाह तू देखे मैं गुनाह करूं, मैं गुनाह नहीं करूंगा। यहां वो अपनी गर्दन झुकाकर कहेगा मैं गुनाह नहीं करूंगा, वहां अल्लाह कहेगा जा मैंने भी तेरे जन्नत के फैसले कर दिए, तेरे रोजे को हमने कबूल कर लिया। तो कौन कौन इसके लिए तैयार है? अब मैं आपको बताऊं, हम लोग रोजा रखते हैं ना, सुनो सुनो अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मेरे प्यारों, हम लोग रोजा रखते हैं ना, ये मोबाइल है ना, मोबाइल हमारे रोजे को बर्बाद कर देता, हमको पता भी नहीं चलता। अब मैं आपको बताऊं कैसे बर्बाद करता। एक हदीस में आया अल-गीबतु तुफसिदुस सौम, ये सारे उलमा गवाह है, हदीस में अल-गीबा तुफसिदुस सौम, हमारे नबी फरमाते ठीक पीछे किसी की बुराई करेगा अल्लाह कहते तेरे रोजे को बर्बाद कर दूंगा, सिवाय भूखे प्यासे के तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और ये मोबाइल में हम क्या करते मालूम, सुबह सहरी वेरी किया, फजर की नमाज पढ़ा और ताज्जुद भी पढ़ता है। जिंदगी में ताज्जुद नहीं पढ़ा लेकिन रमजान में पढ़ता है, इसलिए सहरी के लिए उठा तो ताज्जुद तो पढ़ ही लेगा ना भाई। तो ताज्जुद पढ़ा, सहरी किया, उसके बाद में सोया, उठा, कारोबार में गया, मोबाइल पर घंटी बजी। सुनना, ये हमारे औरतों के यहाँ भी होता, हमारे घर की औरतों के पास भी मोबाइल पर घंटी बजी। कौन? तो मालूम बाबा, तो पहले क्या सवाल होगा मालूम, रोजा रखा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रखा, तूने भी रखा अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी में क्या खाया? वो बताएगा मैं ये खाया। इफ्तारी में क्या बना? ये बना। ये औरतें तो इस तरह बात करती। फिर तीसरी बात आएगी, ओ जन्नत के बारे में तेरे को कुछ मालूम पड़ा? ना मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो घर में हूं, मेरे को क्या मालूम। अब ये जो किस्सा चला तो ज़ैनब से लेकर रुकैया और रुकैया से लेकर फातिमा और फातिमा से लेकर कुलसूम, 15-20 मिनट ठीक है मैंने रख ले तू मोबाइल में, मैं रखती हूँ, यहाँ मोबाइल रखा, वहां अल्लाह ने रोजे को बर्बाद कर दिया। अब वो औरत भूखी है, प्यासी है, इफ्तारी बनाती, ये करती वो करती, वहां फरिश्ते भी सोचते होंगे कितनी बंदी मेहनत करती है, अल्लाह ने कब के इसके रोजे को बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों ये औरतों के बारे में नहीं, हमारे बारे में भी यही बात है। दुख आज से तय करो गीबत नहीं करेंगे किसी की भी। मेरे दोस्त मैं कभी कभी सोचता हूँ किसी की पीठ पीछे बुराई करके क्या मिला, इसमें हम लोग को बहुत मजा आती है। अरे बोलो आती कि नहीं आती? लेकिन अल्लाह की कसम बताओ हमको क्या मिला क्या? भाई आपकी दुकान पर मेरी बुराई करे या मैं मेरे घर पे जाके आपकी बुराई करूं और बुराई करने के बाद मुझे कोई पूछे दुनिया मिली, मैं कहूंगा नहीं, आखिरत मिली नहीं, तेरे से बड़ा पावली कोई नहीं। भाई जब कुछ नहीं मिलता, अरे तुम किसी बुराई करते तुम उसको मारोगे? अरे बोलो तुम उसको मारोगे, तुम उसको डांटोगे, तुम उसको धक्का दोगे? क्यों बुराई? किसी की पीठ पीछे बुराई करने से क्या मिलता? मेरे प्यारे दोस्तों ये रमजान का महीना आता है, साथ में बोलो गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। टीवी सिर्फ रमजान के लिए। एक आदमी ने रमजान के बाद टीवी खोला तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता आज ही खोला मौलाना। तो मैंने कहा क्यों? नहीं वो रमजान में तो शर्म आती थी। मैंने कहा आज बेशर्म हो गया। अरे खुदा तो हर वक्त मौजूद है ना। ताज से इरादा करो भाई, गुनाह नहीं, गुनाह करने की ताकत होगी। एक गुनाह बहुत अजीब है जिसको लोग गुनाह ही नहीं समझते, गुटखा खाते ना, गुटखा अजीब, गुटखा तो बहुत अजीब खाते हैं भाई, मैं तो बहुत हैरान होता था। अरे इतने गुटके खाया कि मौलाना हबीब साहब अभी तो मुंह भी नहीं खुलता, अभी तो यूं एंटर करना पड़ता है, अंदर डालना पड़ता है। मेरे प्यारों ये बॉडी जो है ना, बॉडी ये अल्लाह की अमानत है। बोलो अल्लाह की अमानत। ये नशे वाली चीज सिगरेट होवे कि बीड़ी होवे कि तंबाकू होवे कि गुटखा होवे, रमजान महीना आता है मेरे प्यारों, अल्लाह के सामने दुआ करो, अल्लाह से मांगो, हम गुनाह नहीं, गुनाह करने की ताकत है, अल्लाह तेरे डर से गुनाह नहीं करूंगा। मेरे प्यारों अल्लाह की कसम अल्लाह सब रोजे को कबूल कर लेगा। तो चलो कौन कौन इसके लिए तैयार है? हाथ ऊपर करके अल्लाह कबूल करे भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात देखो, हमको रमजान में गुनाह छोड़ना है, छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो रमजान में सिगरेट इफ्तारी के बाद भी नहीं है। रमजान महीना बहुत मुकद्दस महीना, उसकी एक एक घड़ी मुकद्दस। अरे बोलो उसकी एक एक घड़ी, हाँ तय करो रमजान में गुनाह
घर से गुनाह। अच्छा ये कैसे होगा, ये कैसे, ये आदत हमारे अंदर कैसे आएगी कि गुनाह करने की ताकत है फिर भी मैं गुनाह न करूं, ये कैसे होगा? मेरे दोस्तों शराबी कहेगा मेरे से शराब नहीं छूटती, अरे गुटखे वाला कहेगा मेरे से गुटखा नहीं छूटता, जीना करने वाला कहेगा मेरे से जीना नहीं छूटता, चोरी करने वाला कहेगा मुझसे चोरी नहीं छूटती, झूठ बोलने वाला कहेगा मुझसे झूठ नहीं छूटता। अरे अल्लाह से पूछो, अल्लाह ने हमको पैदा किया, अल्लाह कहते मेरी कसम मेरे बंदे तू एक काम कर ले, मेरी कसम मैं तेरे सब गुनाह को छुड़ा दूंगा। कौन कहता? तो उसके लिए रमजान में बल्कि मेरे दोस्तों अभी से तैयार हो जाओ, वो काम कर लो, ऑटोमेटिक अल्लाह गुनाह छुड़ाएगा। हमने देखा, मैंने दोस्तों मैंने सुना और देखा, बड़े बड़े शराबी कबाबी को देखा, उन्होंने खुद कहा मौलाना हमने ये काम शुरू कर दिया, वो शराब जिसको देखकर हम पागल होते थे अब उसी को देखकर गुस्से की आग भड़क जाती है। तो वो शराब जिसको देखकर पागल होता था आज गुस्से की आग, वो अल्लाह का फैसला। अल्लाह ने 21वें पारे में, वो कौन से पारे में, 21वें पारे में पहली आयत में अल्लाह ने कहा मेरे बंदे तू एक जिम्मेदारी ले ले, तू 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, तू आराम से सो जा, तेरे गुनाह मैं छुड़ा दूंगा। कौन छुड़ाएगा भाई बोलो, कौन छुड़ाएगा? अल्लाह ने फरमाया वाक़िमिस सलाह इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे तेरा काम है 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, मेरा काम है तेरे गुनाहों को छुड़ा देना। और एक हदीस में तो लिखा अल्लाह गुनाह छुड़ाएगा और अगर जल्दी मौत आ गई तो अल्लाह वो गुनाह को भी माफ कर देगा। तो भाई सब तैयार इंशाअल्लाह? तर्जुमा बोलना, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी बोलते जाओ ना, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी रात के सन्नाटे में उंगली मुबारक से इशारा करे, सुभान अल्लाह, फिर उंगली मुबारक से ऊपर इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा हमारे नबी इशारा करे। 1000 से ज्यादा सहाबा अपनी आंखों से देखे, अपनी जुबान से बोले, हमारे नबी रात के अंधेरे में इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी। हमारे नबी मक्का के जंगलों में जाए, हमारे नबी मक्का के बयाबान में जाए, हमारे नबी मक्का के सहरा में जाए, हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। कौन कौन चलो अब अल्लाह की मोहब्बत की बात हुई, अब आ जाओ प्यारे नबी। साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, बुलंद आवाज से बोलो बड़ा प्यारा महीना है, प्यारे नबी का महीना है, बोलो मुस्तफा का दामन। हमारे नबी से बढ़कर कौन होगा? आपको एक सहाबी का नाम लो, आपने शायद सुना नहीं सुना होगा, हजरत सलमान फारसी। बोलो हजरत सलमान। और ये शायद आपने नहीं सुना होगा, ये वो सहाबी है जिनकी उम्र 200 साल से ज्यादा हुई है। बोलो सुभान अल्लाह। कौन? बोलो हजरत सलमान। ये पहले ईरान में थे और इन्होंने वहां अपने अब्बा को कह दिया कि आप जो मजहब पे चल रहे, धर्म पे चल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आता। अब्बा ने इनको निकाल दिया, हज़रत सलमान फारसी निकल गए। अरे बोलो हज़रत सलमान फारसी निकल गए। और उस जमाने में कोई बहुत बड़ा पादरी होगा, कोई बहुत बड़ा राहिब होगा, सलमान फारसी उनके पास चले गए। बोलो सलमान फारसी उनके पास चले गए, जिंदगी भर उनकी खिदमत करते रहे। सुनना, पॉइंट से पॉइंट सुनना। वो ईरान से निकल गए और किसी पादरी के पास गए, जिंदगी भर उनकी खिदमत की। जब जिंदगी भर उनकी खिदमत की, वो पादरी का जब आखिरी वक्त आया तो सलमान फारसी ने कहा मैं आपकी खिदमत कर रहा था, अब मैं कहाँ जाऊंगा? तो उस पादरी ने कहा गमूरिया चले जाओ, एक जगह का नाम है गमूरिया, वहां गमूरिया चले जाओ और वहां जाके एक तुमको पादरी मिलेगा, बस उसकी खिदमत करते रहना। अब सलमान फारसी को अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र दी, ईरान से निकले और एक पादरी के पास गए और फिर पादरी के पास से गमूरिया गए और गमूरिया में वो पादरी के पास गए, पूरी जिंदगी उनकी खिदमत की। जब वो पादरी का आखिरी वक्त आया तो सलमान फारसी ने पूछा अब मैं कहां जाऊं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर निकल गया। वो उस पादरी के पास गया, उसने मुझे गमूरिया भेजा, मैं आपके पास आया, मुझे सही दीन की तलाश है, मैं कहां जाऊं? तो उस पादरी ने जाते जाते कहा कि देख सलमान, अब तू यसरिब चला जा। कहां चला जा? यसरिब। यसरिब कौन सी जगह जिसको हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं? कहा यसरिब चला जा, वहां एक नबी आएंगे, उन पर ईमान ले आना, क्योंकि उनके बाद फिर कोई नबी आने वाला नहीं है। उनके बाद फिर कोई नबी आने वाला नहीं, और वो सारे नबियों के अंदर ऐसी शान होगी। उस पादरी ने कहा वो नबी की शान ऐसी होगी कि सारे नबी मुख्तदी होंगे, मुस्तफा सबके इमाम होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। बस वो पादरी ने कह दिया हज़रत सलमान फारसी चले। अब कहां पर जा रहे? यसरिब। सब बोलेंगे कहां जा रहे? क्योंकि उस जमाने में नाम यसरिब था, उस जमाने में नाम मदीना नहीं था। बराबर सुनना, हज़रत सलमान फारसी यसरिब जा रहे। मगर क्या हुआ, उस जमाने में काफिले चलते थे, रास्ते में लुटेरे होते थे, डाकू होते थे। अब हज़रत सलमान फारसी को किसी ने लूट लिया, किसी ने डाका डाला और हज़रत सलमान फारसी को लेकिन ले गए, यसरिब ले गए और एक यहूदी के हाथ में बेच दिया। ये यहूदी के क्या बन गए? गुलाम। और ये यहूदी के बाग में बराबर मजदूरी करे, लेकिन इनको मजदूरी नहीं करना था, इनका दिल तो लगा हुआ था कब यसरिब में आखिरी नबी आएंगे, कब यसरिब में आखिरी नबी आएंगे। एक दिन हज़रत सलमान फारसी वो दिन आया, वो कैसे सुहानी सुबह होगी कि हज़रत सलमान फारसी, सुनना हज़रत सलमान फारसी, सुहानी सुबह होगी। हज़रत सलमान फारसी अपने बाग में मजदूरी का काम कर रहे हैं, क्योंकि गुलाम है, यहूदी के गुलाम है, उनके बाग में मजदूरी कर रहे। अचानक कान में आवाज आई, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा कुछ बच्चियों के नात पढ़ने की आवाज आई कि 14वीं रात का चांद हमारे दरमियान में है, क्योंकि हमारे नबी जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, नाम क्या था?
यसरिब, बोलो नाम क्या था? लेकिन जब हमारे नबी ने कदम मुबारक रखा, अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा तुम्हारा पाँव इतना मुबारक है, अब ये जमीन का नाम यसरिब नहीं होगा, इसका नाम मदीना होगा, बोलो सुभान अल्लाह। इसका नाम मुनव्वरा होगा, सुभान अल्लाह। इसका नाम मैमूना होगा, बोलो सुभान अल्लाह। इस जमीन का नाम तय्यबा होगा, बोलो सुभान अल्लाह। इस जमीन का नाम तौबा होगा, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी आए और बच्चियों ने नाते पाक पढ़ी। हजरत सलमान फारसी अपने बाग में मजदूरी कर रहे, खजूर वाले बाग में मजदूरी कर रहे। सुनना, हजरत सलमान फारसी के कान में जब आवाज आई कि लोग कह रहे हैं कोई आए हैं, कोई आए हैं, हजरत सलमान फारसी ने कान लगाया तो समझ में आ गया कोई आए नहीं है, ये तो अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद आया हुआ है। अब सुनना, हजरत सलमान फारसी वहीं बाग में बैठ गए, क्योंकि वो जिस पादरी को छोड़कर आए थे ना, उस पादरी ने कहा था यसरिब में आएंगे। तो हजरत सलमान फारसी ने पूछा था उनको पहचानूंगा कैसे? कहा 3 निशानियां होगी, एक तो सदके का माल नहीं लेंगे, दूसरा हदिया दोगे तो कबूल कर लेंगे, और नंबर 3 उनके 2 कंधों के बीच में एक मोहर होगी जिस पर अल्लाह की तरफ से लिखा होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत सलमान फारसी ने तीनों बातों को बराबर ध्यान में लिया, क्योंकि पता चल गया कि मोहम्मद आ गए, बोलो मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, 14वीं रात के चांद आ गए, नबी आ गए, मुस्तफा आ गए, मुज्तबा आ गए, मुर्तजा आ गए, रऊफ और रहीम आ गए। हजरत सलमान फारसी अपने बाग से ये सब बातें याद करने के बाद दौड़े। इनका आका यहूदी समझा कि ये भाग रहे हैं, तो वो भी पीछे भागा। सलमान फारसी को रोका, सलमान फारसी रुके और कहा मैं भाग नहीं रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूं, आज तक जिनको तलाश कर रहा था वो मदीने में आ गए हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी गए और जानबूझकर कुछ सदके की खजूरें लेकर गए। अब जब हमारे नबी से मुलाकात हुई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हजरत सलमान फारसी ने वो सदके वाली खजूरें यूं सामने पेश की। जैसे पेश की, कुछ बताया नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को देखा, कहा सलमान ये तो सदके वाली है। कहा हाँ अल्लाह के रसूल ये सदके वाली है। कहा प्यारे मोहम्मद ये सदके वाली है। हमारे नबी ने फरमाया हम नबियों की जमात सदका कबूल नहीं करते, वापस लेकर चले जाओ। हजरत सलमान फारसी इतने खुश होकर आए, हालांकि वहां सारे लोगों ने देखा कि हमारे नबी ने इनकी खजूर को कबूल नहीं किया, सदके वाली खजूर थी, लेकिन हजरत सलमान इतने खुश हो गए, कहने लगे वो पादरी की बात याद आ गई, एक निशानी मेरे को मिल गई, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी दूसरे दिन जो मजदूरी कर रहे थे, मजदूरी में से अपने पैसों में से कुछ खजूरें ली। आज फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जाकर खजूरों को सामने रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम हदिया लेकर आए हो ना? तो हजरत सलमान फारसी ने कहा हदिया लेकर आया। लाओ, कहा हम हदिये को बहुत खुशी से कबूल कर लेते हैं। कब हजरत सलमान फारसी कहने लगे मेरे ईमान लाने का वक्त अब करीब हो गया, क्योंकि मेरे को 3 निशानियां देखनी थी, सदके की खजूर कबूल नहीं, हदिये वाली खजूर कबूल, लेकिन तीसरी निशानी देखना बहुत मुश्किल है। किसी को थोड़ी कह सकते, क्योंकि आदमी कपड़ा पहना है, उसको थोड़ी कह सकते तेरी पीठ बता। भाई अभी हम लोग भी कपड़ा पहने हुए, कोई बोलेगा भाई कुर्ता उतार, शर्ट उतार, टी शर्ट उतार, क्यों? काम मेरे को तेरी पीठ देखना। और फिर हमारे प्यारे नबी, मालूम है हजरत सलमान फारसी तीसरी निशानी के लिए एक मर्तबा गए और इतना गए हमारे नबी के बिल्कुल करीब चले गए, बोलो हमारे नबी के बिल्कुल करीब चले गए, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चादर मुबारक है, हजरत सलमान फारसी पीछे और बोलो हमारे नबी आगे, और हजरत सलमान फारसी कैसे वो चादर, क्योंकि चादर कंधों पर लटकी हुई है, कैसे मालूम होगा कि अंदर मोहरे नबूवत छुपी हुई है, अंदर अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कैसे मालूम होगा? हजरत सलमान फारसी कहे मैं ऊपर वाले से मांगता तो ऊपर वाले हवा चला दे, हवा चला दे, ताकि हवा चलेगी और ये चादर थोड़ी इधर उधर होगी, मैं मोहरे नबूवत देख लूंगा। कहते मैंने इतनी दुआ मांगी मगर हवा न चले, मेरे नबी के पीछे पीछे, मेरे नबी आगे आगे, हवा चल नहीं रही है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं अचानक मेरे नबी ने ये चादर मुबारक हटाई और मेरी तरफ फअल्का अलैया रिदाहु, हजरत सलमान फारसी ने मेरी तरफ चादर फेंका और कहा उन्जुर मा उमिरत बी, देख ले मोहरे नबूवत देख ले और ईमान कबूल कर ले, देख ले मोहरे नबूवत देख ले, ईमान कबूल कर ले। मेरे प्यारो हजरत सलमान फारसी ऐसे लिपट गए कि मोहरे नबूवत को चूमते गए, चूमते गए, चूमते गए, और वो मोहरे नबूवत क्या थी? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारो ऐसा प्यारा नबी किसको मिले जो सारे नबियों का इमाम है, बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है? फिर बोलो मुस्तफा का दामन। एक बात याद है आपको बताऊं? हाँ बोलो, बताओ एक बात, वक्त खत्म होते जा रहा है। खैर हम बात को खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत प्यारी बात बताओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, हाँ बोलो हुई ना, विलादत बाद शहादत हुई हमारे नबी की, तो आपको दाई हलीमा ले गई थी, बोलो ले गई थी। अब दाई हलीमा एक गरीब औरत थी, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के वास्ते ले गई। आपको मालूम है एक दिन हलीमा की जितनी सहेलियां थी ना, वो हलीमा को पकड़ती है और कहती है हलीमा, ए हलीमा तेरे पास पैसा बहुत आ गया। अब हजरत हलीमा कहती मैं तो गरीब हूं, मेरा झोपड़ा है, झोपड़े के ऊपर छप्पर भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो हम कुछ भी रखते हैं, छप्पर बनाते, तुम कैसे कहती हो? और सारी सहेलियों ने कहा ना तू बहुत अमीर की बेटी बन गई। कहा कैसे? कहा तेरे घर में रात को भी चिराग जलता है, हालांकि रात में तो बड़े बड़े अमीर लोग लाइट ऑफ कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, तेरे घर में रात को भी चिराग जलता है, रात को भी तेरे घर में उजाला होता है, रात को भी तेरे घर में रोशनी होती है। वो सारी सहेलियां कहती हम जब भी देखते तो तेरे घर में उजाला होता है, बाकी पूरे कबीला बनू साद में अंधेरा अंधेरा होता। हजरत हलीमा ने अपनी सहेलियों को कहा मैं तुमको लाइट बताऊं, ले आई और कहा कि ये जो बच्चा है ना मोहम्मद, क्या फरमाया
فرمایا؟ کیا فرمایا؟ متخذناہ سراجا حین اخذناہ، جب سے محمد ہمارے گھر میں آئے ہم نے ساری بتیاں توڑ دی ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر روشن کوئی ہم کو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اسی کے چہرے کی چمک دن میں بھی ہوتی ہے، اسی کے چہرے کی چمک رات کے اندھیرے میں بھی ہوتی ہے۔